Hello everyone. Today we will discuss about chapter number 11, chemical effects of electric current of class 8. Now, your elders might have warned you against touching an electrical appliances with wet hand, but do you know why it is dangerous to touch an electrical appliances with wet hands? We have learned earlier that the material which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity. So here are some appliances, some things which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity. So there are here we discuss about the good conductor and bad conductor of electricity, which is good conductor of electricity and which is bad conductor of electricity. तो यहाँ पे अगर हम वेट हैंड से अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टच कर लेते हैं तो क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. तो जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो व्हाट इज द रीजन कि इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगा और क्यों हमें वेट हैंड से कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए. वाई वी शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद द वेट हैंड, क्यों हमें उसे टच नहीं करना चाहिए. तो हियर some substances which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity. जो things appliances अपने में से electricity को pass out होने देते हैं, they are known as the good conductor of electricity. Now, on the other hand, materials which do not allow electricity current pass through them easily are poor conductor of electricity. जो pass out नहीं होने देते electricity को, they are known as the bad conductor of electricity. कि मतलब जिनके थ्रू electricity pass नहीं हो रही है, they are known as the bad conductor of electricity. या फिर हम कह सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, देयर आर टू टर्म्स, वन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ in class 6 we made a tester to test whether a particular material allow the electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester helped us in deciding that we found that materials such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. So here these are the example कि some aluminum जैसे copper, aluminum conduct electricity. It means this is a good conductor of electricity. So what is the example of good conductor of electricity? Copper and aluminum. These are the example of good conductor of electricity. It means they allow the electricity to pass through them. ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास आउट होने देते हैं. हियर द रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो रबर है, प्लास्टिक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये किसके एग्जाम्पल है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. की जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टच करते हो तो आपको कहते हैं कि या तो आप स्लीपर्स, रबर स्लीपर्स ले लीजिए या आप वुड की टेबल पे, वुड की टेबल को यूज में ले लीजिए. वाई, क्यों कहते हैं हमको कि आप रबर स्लीपर पहन लो या वुड की टेबल ले लो या फिर प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लो? बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देंगे. क्लियर? तो और इसका मतलब कि ये जो है दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कि क्या हो जाएंगे? प्लास्टिक, वुड, रबर, these are the bad conductor of electricity. Now, however, so far we have used our tester to test material which were in solid state. But what about liquid? Do liquid also conduct electricity? Let us find out.
कि देखो यहां पर हमने जो हमारा टेस्टर का एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेस्टर, ओके, ये हमारा एक टेस्टर है, दिस इज आवर टेस्टर। फर्स्ट हमने यहाँ पे टू कंडीशंस अप्लाई करी है, ओके। नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज टेस्टर कि जो फ्रंट है, जो आगे का जो फ्रंट एंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ किया है, हमने यहाँ पे ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, वायर है, सेल है, बल्ब है, और ये जो सेकंड वायर है ये कहां से अटैच है, टेस्टर के जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है जहां पे क्या प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है, वहां से हमने उसको क्या करा है, टच करवाया है। जो हमने एक सर्किट बनाया है वो सिर्फ इतने पार्ट के अंदर ही हमने क्या बनाया है, सर्किट बनाया है। अब जैसे ही हमारा ये सर्किट कंप्लीट होता है, बल्ब क्या करता है, ग्लो कर जाता है। इट मींस कि जो टेस्टर का ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ टेस्टर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वाला पार्ट क्या है टेस्टर का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर अब जैसे हमने पहले कहां अटैच किया था, इस वाले पार्ट से अटैच किया था, अब हम हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है कि यहां से हमने अब कौन सा पार्ट ले रहे हैं, हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं। अब हमारा कौन सा पार्ट ले रहे हैं, हमने ये वाला पार्ट यूज में लिया है। तो दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ये किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। अब जब हमने टेस्टर से एक वायर को यहां से अटैच करके, सेल से फिर यहां से दूसरा वायर अटैच किया, हमने सर्किट कंप्लीट करने के बाद भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इट मींस दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि ये वाला जो पार्ट है, this part is bad conductor of electricity while this part is good conductor of electricity। ये वाला पार्ट क्या हमारा, good conductor of electricity। क्लियर कि जो हमारे बैड कंडक्टर में आ जाता है प्लास्टिक और गुड कंडक्टर में हमारा क्या है, मेटल। तो ये तो हमारी हुई सॉलिड की बात कि जो टेस्टर है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड। टेस्टर क्या है, सॉलिड का एग्जांपल है। तो क्या सिमिलर इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड्स में भी पास आउट होती है क्या, जो लिक्विड्स हम यूज में लेते हैं कि डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो हम लिक्विड यूज में ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर जो यूज में ले रहे हैं हम, क्या उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है क्या। तो लेट अस चेक कि टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज द सेम टेस्टर। हम क्या करते हैं, सेम यूज में लेते हैं और फिर उसको फाइंड आउट करेंगे। Replace the cell by battery also before using the tester. We should check whether it working or not. अब इसके अंदर now this is the activity by which we can say कि इलेक्ट्रिक जो हम लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड इलेक्ट्रिक सर्किट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां पर हमने दिस इज आवर बैटरी, बल्ब है और ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स। हमने इनको किसमें डिप किया है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारा क्या फिल है, लेमन जूस। हमने क्या फिल कर रखा है, लेमन जूस। अब ये जो हमने लेमन जूस फिल कर रखा है, अब क्या ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा या नहीं। तो ये हमने क्या कर रखा है, लिक्विड में फिल कर रखा है। तो जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें क्या ऑब्जर्व करना है, लिक्विड कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हियर वी ऑब्जर्व दैट some liquids are good conductor of electricity while some liquids are bad conductor of electricity. For example, distilled water. Distilled water, this is a bad conductor of electricity. अगर हम distilled water की बात कर रहे हैं, pure distilled water की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, bad conductor of electricity है। और अगर हम distilled water के अंदर a spoon of salt ऐड कर देते हैं, now it will become a good conductor of electricity. तो क्या हुआ कि ये हमारा क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। दोनों लिक्विड है। फर्स्ट हम डिस्टिल वाटर की बात करें, वो भी लिक्विड है,
और सेकंड हम किसकी बात करें, सॉल्ट सॉल्यूशन की, दिस इज ऑल्सो लिक्विड। बट डिस्टिल वाटर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। जब उसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, नाउ इट विल बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिमिलर हम इसके अंदर एक्टिविटी में हम यहाँ पर कंटेनर में लेमन जूस ले सकते हैं, विनेगर ले सकते हैं, कुछ भी चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट हैपन, when the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass, the circuit of the tester become complete, the current flows in the circuit and the bulb glow। ये हमारा प्रीवियस कि जो when the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow। कि मतलब जो हमने लिक्विड यहाँ पर यूज में लिया है, अगर ये लिक्विड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो हमने लिक्विड लिया है इलेक्ट्रिक करंट अपने में से पास आउट करेगा, तो हमारा ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। क्यों, यहां से हमारे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो कहां गई, लिक्विड के अंदर गई। तो अब इस लिक्विड से वो इलेक्ट्रिक कहां जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रोड तक जाएगी, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड से जब ये आगे मूव करेगी तभी तो जाके बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। इट मींस दिस इज अ कंप्लीट सर्किट, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। और अगर कि मतलब अगर हमने यहां पर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ले लिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं कर रहा है, यहां पे अगर हमने डिस्टिल वाटर ले लिया तो वो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है बट वो डिस्टिल वाटर ही इस इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास नहीं करेगा। तो ये हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, नाउ in some situation even through the liquid is conducting, the bulb may not glow, it may have happened in the activity 11.2, ये वाली एक्टिविटी जो हमने अभी करी। what can be the reason, do you remember why the bulb glow when the electric current pass through it? Due to the heating effect of current, the filament of the bulb gets heated to a high temperature and it start glowing। कि क्या हो रहा है कि बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है, तो ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे ही करंट पास हो रहा है उससे क्या जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है एंड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड। जो फिलामेंट होता है, जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट, वो क्या होगा, वो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर से वो क्या होगा, हीटेड होगा और आफ्टर दैट एंड स्टार्ट ग्लोइंग, वो क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हम कह रहे हैं लिक्विड से भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो यहाँ पे जो थिन फिलामेंट है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ, हाई हुआ, हाई टेम्परेचर से यहाँ बल्ब में जो थिन फिलामेंट है, तो ये थिन फिलामेंट क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगी इसमें, और ड्यू टू द हीट, हाई टेम्परेचर हीट की वजह से ये क्या करने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। ओके, ये तब पॉसिबल है जब लिक्विड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जब हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अदरवाइज जो इनकम्प्लीट सर्किट है उसमें तो बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। ओके, नाउ हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड। कि कई बार लिक्विड ऐसे होते हैं कि जिनसे सर्किट जो फिलामेंट है, जो करंट थ्रू द सर्किट इज टू वीक, बहुत कई बार लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास तो होता है बट वो बहुत ज्यादा वीक होता है और वो जो फिलामेंट है वो इतना ज्यादा हीट नहीं हो पाता, तो वो क्या करता है, ग्लो नहीं करता, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सफिशिएंटली एंड इट डज नॉट ग्लो, कि जो बल्ब का जो थिन फिलामेंट को ग्लो करने के लिए हीट, जितनी हीट उसको चाहिए, अगर उसकी हीट उसको नहीं मिलती है तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर? तो कई बार कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो इतनी प्रॉपर हीट जनरेट नहीं कर पाते, तो वो बल्ब ग्लो नहीं करता है।
Why is the current in the circuit weak? Well, through a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make a bulb glow. Can we make another tester which can detect the weak current? अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो वीक करंट है उसके लिए हम यूज में लेते हैं वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर डू यू रिकॉल द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसर अ मैग्नेटिक इफेक्ट what happened to compass needle cap nearby when a current flow in a wire even if the current is small the deflecting of the magnetic needle can be seen can we make a tester using the magnetic effect and current अब इसके अंदर ये तो हमें पता चल गया कि सम लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सम आर नॉट कुछ लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कुछ लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते अब इसके अंदर अब जो वीक है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहे हैं तो हाउ कैन वी भाई हमको कैसे पता चलेगा वो इलेक्ट्रिसिटी तो पास कर रहे हैं बट बल्ब ग्लो नहीं हो रहा तो हम तो यही ऑब्जर्व करेंगे कि जब बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है तो मतलब उस लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हुई है बट ऐसा नहीं होता है एक चीज और उसके लिए हम यूज में ले सकते हैं ये एलईडी लाइट्स हम यूज में ले सकते हैं ये बहुत माइन्यूट हीट पर ही ये क्या करने लग जाती है ग्लो करने लग जाती है ओके तो यहाँ पर हम एलईडी लाइट्स भी यूज में लेते हैं जिससे हम सर्किट पूरा करेंगे तो वो जब सर्किट में वीक जो इलेक्ट्रिक करंट है जो वीक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उससे भी ये क्या होगी ग्लो करने लग जाएगी नाउ द अनदर वन इज विच इज वी यूज मैग्नेटिक जो हम मैग्नेटिक नीडल को यूज में ले रहे हैं ये रहा कि ये हमने एक अनादर सर्किट बनाया है जिसके अंदर हम यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनको हम डिप करेंगे किसी लिक्विड में ओके विच इज अ वीक जो कैसा है वीक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है अब ये जो हमने एक सर्किट बना लिया अब यहाँ पे हमने बल्ब की जगह क्या यूज में लिया है मैग्नेटिक कंपास बल्ब की जगह हमने क्या यूज में लिया है मैग्नेटिक कंपास तो जैसे ही हम कोई लिक्विड जो यूज में ले रहे हैं जिसके थ्रू वीक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो जैसे ही वीक इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो रही है बट वो कैसी है वीक है तब उसमें क्या होगा इस निडल के अंदर क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन हो जाएगा इस निडल में क्या हो जाएगा मूवमेंट शो हो जाएगा तो इससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक जो वाटर है जो सॉल्यूशन है जो लिक्विड हमने यूज में लिया है उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है क्योंकि ये देखो जो हम बल्ब यूज में ले रहे हैं बल्ब सिर्फ तभी ग्लो करेगा जब उसको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ठीक है तो उससे तो हमें ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कुछ लिक्विड है जो वो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे बट कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो बल्ब वो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर रहे हैं बट उनसे प्रॉपर हीट नहीं मिल रही जिससे बल्ब ग्लो कर सके तो उन लिक्विड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई उस लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है चाहे वो वीक हो चाहे वो हाई होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वीक है तो उसके लिए हम बल्ब की जगह हम यहाँ पर यूज में ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ठीक है मैग्नेटिक कंपास यूज में ले रहे हैं तो जैसे ही जो अननोन सॉल्यूशन जो अननोन लिक्विड हम यहाँ पर यूज में लेंगे तो अगर उस अननोन लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो निडल में क्या होगा डिफ्लेक्शन शो होगा निडल में क्या होगा मूवमेंट शो हो जाएगा और अगर नहीं हो रही है तो वो बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करेगा अब ये जो अननोन सॉल्यूशन है ये चाहे वीक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे या हाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे तो उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये क्या होगा वीक भी होगी तब भी हमें क्या हो जाएगा पता चल जाएगा कि दिस सॉल्यूशन कैन इसमें से ये क्या करेगा दिस सॉल्यूशन कैन अलाउ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है क्लियर आ गया समझ में नाउ
कि under certain condition most material can conduct. That is why it is preferable to classify material as good conductor and poor conductor instead of the classifying as conductor and insulator. We have tested the conduction of electricity through tap water. Let us now test the conduction of electricity through distilled water. एक हम किससे करें? टैप वाटर से करें और एक हम किससे कर रहे हैं? डिस्टिल्ड वाटर से कर रहे हैं। ये मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। ओके, टैप वाटर नॉर्मल वाटर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. ये मैंने अभी आपको बताया था, जब हम salt dissolve कर रहे हैं distilled water में, तो हम क्या ले रहे हैं? Salt solution बन गया हमारा। हमें क्या मिलेगा? Salt solution. This is conductor of electricity. ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ओके, प्रॉपर डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। हमने क्या यूज में लिया उसमें? Salt solution. Now it will conduct electricity. Now the water that we get from sources such as tap, hand pumps, wells and ponds is not pure. It may contain several salts dissolved in it. Small amounts of mineral salts are naturally present in it. This water is thus a good conductor of electricity. On the other hand, distilled water is free of salt is a poor conductor of electricity. ये तो हमें पता चल गया कि डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, टैप वाटर, पॉन्ड वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है कि डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बोथ आर वाटर, बोथ आर लिक्विड। फिर क्या रीजन है? तो इन द डिस्टिल्ड वाटर salts are not present in the distilled water. डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता। जबकि हम टैप वाटर, पॉन्ड वाटर, किसी वाटर की बात करें तो उसमें several salts are dissolved in it. नेचुरली उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे salts dissolve होते हैं। तो that is the reason कि जो डिस्टिल्ड वाटर है this is a bad conductor of electricity और टैप वाटर दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे ही हम डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ we have found that common salt when dissolved in distilled water makes it a good conductor. What are the other substances which when we dissolve in the distilled water make conducting? Let us found. Now, most liquids that conduct electricity are solution of acid, base and salt. तो basically कौन से liquids जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कौन कौन से होते हैं? एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। जो एसिड होंगे, नेचर में एसिड है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। बेस है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ठीक है। और सॉल्ट्स हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। When an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect of the solution? Now, chemical effects of the electric current. In class 7, we have learned some effects of electric current. Can you list these effects? What effect does the current produce when it flows through a conducting solution? देखो ये एक है हमारा कंडक्टिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे भी यूज टू इलेक्ट्रोड्स। हम क्या यूज में ले रहे हैं? ओके, दिस इज आवर सर्किट। ये हमारा सर्किट है। इसके अंदर हमने क्या यूज में लिया है? ये एक बीकर है, इसमें वाटर फिल है और यहाँ पर हमने यूज में लिया है देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स विच इज कार्बन रॉड। यहाँ पे हमने क्या यूज में लिया है? कार्बन रॉड्स यूज में ली है। अब हम इस कार्बन रॉड्स पे क्या लगा रहे हैं? जो ये कैप है, इस मेटेलिक कैप पे ये जो वायर है
वो क्या कर देंगे, टाई कर देंगे। ये देखो जिस तरह से डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, जो मेटल कैप है, ये जो वायर है, इस वायर को हमने क्या करा, मेटेलिक कैप के ऊपर टाई कर दिया। ओके, और फिर इसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो अब इससे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो सॉल्यूशन हम यूज में ले रहे हैं वाटर, इसके थ्रू पास हो रहा है या नहीं। The passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction। कि जो हमने यहाँ पर कार्बन रॉड यूज में ली थी, दिस इज अ कार्बन रॉड, और ये जो सॉल्यूशन हमने यूज में लिया था, तो द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, वो जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कॉज अ केमिकल रिएक्शन, वो क्या जनरेट कर रही है, एक केमिकल reaction। As a result, bubbles of a gas may be formed on the electrodes, deposit of metal may be seen on the electrodes, change of color of the solution may occur। तो अब हमें ये कैसी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बबल्स जनरेट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट है। यहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस अकर हो रही है। द सेकेंड इज जो ये है, बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड, डिपॉजिट ऑफ मेटल्स में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड। कि यहां पर जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, तो ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट है, ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने से कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। किसका डिपोजिशन होगा, कॉपर का। तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन में अकर, कि जो कलर है सॉल्यूशन का, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। ये इस पे डिपेंड करेगी कि हम कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज में ले रहे हैं और कौन सा सॉल्यूशन यूज में ले रहे हैं। These are some of the chemical effects on the electric current। Now here, this is an example। यहां पर हमने क्या लिया है, एक पोटैटो लिया है, ठीक है। इसके अंदर ये हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर पोटैटो के अंदर क्या आ रहा है, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो इसकी एक इलेक्ट्रोड की तरफ केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रीन स्पॉट जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जैसे ही हमने ये सर्किट कंप्लीट किया, सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज में लिया है, पोटैटो। तो जो पोटैटो के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज में ले रहे हैं, तो उसके बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, जिसके थ्रू हमारे पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रीन स्पॉट जनरेट हो रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, एक डिजायर मेटल की, जो डिजायर मेटल है उसकी अनदर मेटल पर क्या कर रहे हैं, प्लेटिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, नाउ you know that the brand new bicycle has shiny handlebars and wheel rims. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing and not shine surface beneath. You might have also seen women using ornaments which appear to be made up of gold. However, with repeated use,
The gold coating wears off, revealing silver or some of the other metal beneath. कि जो आपकी कई बार आपकी बाइसिकल लेके आते हैं तो कितनी शाइनिंग करती रहती है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी वजह से वो जो है कैसी हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और उसके बाद जो उसकी शाइन है वो क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। जो ऑर्नामेंट्स, जो वुमेन्स जो ऑर्नामेंट्स यूज में लेती हैं उसमें भी क्या होता है, कई बार जैसे सिल्वर के ऊपर हम गोल्ड प्लेटिंग कर देते हैं, कई बार कुछ कॉपर है या कुछ और अदर मटेरियल है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्लेटिंग कर दी जाती है। तो इस तरीके से कि यहाँ पर कि कुछ भी ऑर्नामेंट्स हैं सिल्वर के हो, गोल्ड के हो या फिर कोई भी थिंग है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, प्लेट कर रहे हैं अदर मटेरियल की, अदर मेटल की, तो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। In both these cases, a metal has a coating of another metal. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on the top of the another? ये देखो, दिस इज अ एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने दो प्लेट्स लिए, ओके, दिस इज अ कॉपर प्लेट, यहाँ पर हमने क्या लिए, टू प्लेट्स लिए, ये कौन सी प्लेट्स है, कॉपर प्लेट। आफ्टर दैट हमने इसको किसमें डिप करा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, किसमें डिप करा है हमने इसको, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो जैसे ही हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इनको डिप करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और ये जो कॉपर है ये क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा एक कॉपर प्लेट पे, जो कॉपर का जो सॉल्यूशन है वो कहां डिपॉजिट हो जाएगा, एक कॉपर प्लेट पे डिपॉजिट होता जाएगा, और उसके थ्रू यहां से क्या हो जाएगा, कॉपर कम होता जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर का जब डिपोजिशन उधर हो रहा है तो यहां से क्या हो रहा है, कॉपर कम होता जा रहा है, तो उस कॉपर की क्वांटिटी को कम करने, उसको मेंटेन करने के लिए इस कॉपर प्लेट से क्या होगा, कुछ कॉपर नीचे कॉपर सॉल्यूशन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक सर्किट की हेल्प से किसी प्लेट पे हम दूसरी मटेरियल की क्या कर सकते हैं, प्लेटिंग कर सकते हैं। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociated into copper and sulfate, किसमें चेंज हो जाएगा, कॉपर और सल्फेट। The free copper gets drawn to the electrodes connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. बैटरी में एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो कॉपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो काम मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, but the amount of the loss of copper from the solution from the other electrode, a copper plate and equal amount of copper get the dissolved in the solution, कि जो दूसरी कॉपर प्लेट है वहां से क्या हो जाएगा, उतना ही कॉपर सॉल्यूशन में आ जाएगा। The process of deposit, loss of copper from the solution is restored and the process continues. This means the copper gets transferred from one electrode to the other. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. It is one of the most common appliances of chemical effects of electric current. Electroplating is a very useful process. It is widely used in industry for coating metal objects with a thin layer of different metal. The layer of metal deposit has some desired property which the metal of the object lacks. For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bathtubs, kitchen gas burners, bicycles, handlebars, wheels, rims, and many other substances. Chromium has a shiny appearance. It does not corrode. It resists scratches. However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium. So the object is made from the cheaper metal and only a coating of chromium. तो chromium क्या है?
कि क्रोमियम जो है वो रेजिस्ट करता है स्क्रैच से, और ये कैसा होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर चीपर मेटल से तो उसको बना लेते हैं और उसके ऊपर फिर क्रोमियम की क्या कर देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं। और इट इज डिपॉजिट ज्वेलरी मेक्स इलेक्ट्रोप्लेट्स silver and gold on less expensive metals. These ornaments have the appearance to silver or gold but are much less expensive. उससे क्या होता है कि कोई हमने अदर मेटल के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी तो लुक लाइक अ गोल्ड ऑर्नामेंट ही लगेगा, बट कंपेयर टू गोल्ड और प्योर गोल्ड ऑर्नामेंट की उसके कंपैरिजन में वो एक्सपेंसिव कम होगा। Thin cans used for storing food are made. The electroplating tin on to iron. Tin is less reactive than iron. Thus, food does not come into contact with iron and is protected from getting spoiled. Iron is used in diesels and automobile to provide strength. Iron tends to corrode and rust, so coating the zinc. Iron क्या होता है, इस पे आयरन रस्ट लग जाती है, कोरोड हो जाता है, कि इसके अंदर फ्लोरेशन से बचाने के लिए कि उसके अंदर ये आयरन रस्ट न लगे तो उसके ऊपर किसकी प्लेटिंग कर दी जाती है, जिंक की प्लेटिंग कर दी जाती है। डिपॉजिट ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। Okay, now we have complete our chapter. Thank you.